لوئر دیر کے علاقے میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، گاڑی کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیمز اور مقامی افراد نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چک درہ منتقل کیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ سیالکوٹ میں تھانہ حاجی پورہ پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 2 خطرناک گینگز کے سرغنہ سمیت 5 ملزمان گرفتار ملزمان شہریوں سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکلیں، نقدی اور قیمتی موبائل فونز چھیننے میں ملوث تھے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ چنیوٹ میں ستھرا پنجاب کے ورکرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کٹوتیوں کے خلاف ختم نبوت چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ختم نبوت چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ورکرز کا کہنا تھا انہیں 1 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، جس کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ صوبت پور میں حالیہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کھڑی اور کٹی ہوئی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ کسانوں کے مطابق پہلے ہی مہنگائی اور زرعی اخراجات کے بوجھ تلے دبے کاشتکاروں کو اس قدرتی آفت نے شدید مالی نقصان پہنچایا ہے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت سے فوری امداد، نقصانات کے سروے، معاوضے اور زرعی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سرگودا میں کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد، 200 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر سائمہ منظور کے مطابق ٹرائلز میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ منتخب کھلاڑی ڈویژن سطح کے مقابلوں میں سرگودا کی نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نزہت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لوئر دیر کے علاقے میں افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، گاڑی کھائی میں جا گری ہے جس کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی ڈرائیور محمد ظاہر کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں محمد ظاہر اور دیگر مسافر شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ان کی زوجہ موقع پر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمز اور مقامی افراد نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چک درہ منتقل کیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ لیاقت پور کے قریبی قومی شاہراہ پر موٹر سائیکل مسافر بس سے ٹکرا گئے جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور رورل ہیلتھ سینٹر خان بیلہ منتقل کیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کی شناخت 40 سالہ غلام متنی، 35 سالہ شازیہ بی بی اور 40 سالہ نسرین بی بی کے نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق فتح پور کمال سے بتایا گیا ہے۔ ادھر وہاڑی میں سیوریج کنویں میں زہریلی گیس بھرنے سے باپ بیٹا جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ وہاڑی کے نواحی علاقے ماچھیوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں سیوریج کنویں کی صفائی کے دوران زہریلی گیس بھرنے سے 4 مزدور بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق تمام افراد کنویں میں گر گئے، جنہیں فوری کارروائی کرتے ہوئے باہر نکالا گیا۔ تاہم اویس اور عظیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 دیگر افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیروزوارہ میں دریائے راوی میں نہاتے ہوئے باپ اور 2 بیٹے ڈوب گئے ہیں۔ فیروزوالہ کے علاقہ کالا خطائی روڈ کے قریب دریائے راوی سائفن پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نہاتے ہوئے باپ اور اس کے 2 بیٹے دریا میں ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ایمرجنسی گاڑیاں اور غوطہ خور ٹیمیں موقع پر پہنچی اور تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ کنکوٹ کے علاقہ بنگلہ کے قریب نامعلوم افراد نے کبوتروں کے خانہ کو آگ لگا دی، جس سے درجنوں پرندے ہلاک ہو گئے۔ متاثرہ افراد کے مطابق واقعے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم پولیس نے ابتدائی طور پر 2 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد رات کے وقت چھوڑ دیا۔ متاثرین نے ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کیا ہے کہ وائلڈ لائف پروٹیکشن قوانین کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے۔
اوکاڑا میں گھریلو جھگڑوں سے دل برداشتہ 22 سالہ لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی نے 4 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی، تاہم گھریلو ناچاکی کے باعث وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ آئے روز ہونے والے تلخ کلامی سے تنگ آ کر اس نے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہے اور لاش کو تحویل میں لے کر فورینسک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر کشمور میں کھوسا برادری کے 2 گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ، ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ کشمور میں میر اسرار خان کوسو کے گاؤں میں کھوسا برادری کے 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے تصادم کے دوران فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں عبدالرزاق کوسو جاں بحق جبکہ امام الدین زخمی ہوا۔ زخمی کو فوری طور پر کشمور سول اسپتال منتقل کیا، تاہم حالت تشویشناک ہونے پر اسے رحیم یار خان ریفر کر دیا گیا۔ سیالکوٹ میں تھانہ حاجی پورہ پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 2 خطرناک گینگز کے سرغنہ سمیت 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان شہریوں سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکلیں، نقدی اور قیمتی موبائل فونز چھیننے میں ملوث تھے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے 5 موٹر سائیکلیں، 9 موبائل فونز، 6,10,000 روپے نقدی اور 30 بور پستول بما متعدد گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ پولیس کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر وارداتوں کی ٹریسنگ بھی کی جا رہی ہے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی میں خطرناک ڈاکو مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ساہیوال کے علاقے دین پور کے قریب سی سی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ملزم عاطف ظہیر کو مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم مویشی چوری اور ڈکیتی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جا رہی ہیں۔ خانیوال میں سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوں میں مبینہ مقابلہ، 3 ملزمان مارے گئے۔ خانیوال میں سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ہلاک ہونے والے تینوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت احمد، انصر اور اسد علی کے نام سے ہوئی ہے، جو مختلف سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ کاہنہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی بڑی منصوبہ بندی ناکام بنا کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق تلاشی کے دوران ملزمان کے قبضہ سے 2 30 بور پستول، گولیاں، 1 موٹر سائیکل اور 2 چوری شدہ موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ گرفتار ملزمان پہلے سے مقدمے میں مطلوب تھے، جبکہ ان کے خلاف دفعہ 401 کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ دادو کے علاقے جوہی میں مسجد میں مسلسل چوری کی وارداتیں، شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دادو کی تحصیل جوہی کے گاؤں میں نامعلوم چور مسجد سے قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے۔ مقامی افراد کے مطابق مسجد میں چوری کا یہ تیسرا واقعہ ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ علاقہ مکینوں نے ایس ایس پی دادو سے فوری نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری اور سامان کی برآمدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر پاک پتن میں مسلح ڈاکوں کی واردات، بیوپاریوں سے لاکھوں روپے اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ متاثرین کا موقف ہے کہ پولیس نے فوری کارروائی کی بجائے انہیں ہی تھانے میں بند کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہری پور میں فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں باپ بیٹا زخمی جبکہ ایک شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طور پر ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا اور بعد از ایبٹ آباد ریفر کیا۔ زخمیوں میں سے چوتھری عظمت دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہری پور سے، جہاں فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں باپ بیٹا زخمی جبکہ ایک شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طور پر ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا ہے اور بعد از انہیں ایبٹ آباد ریفر کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے چوتھری عظمت دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
सोबतपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत की छत का हिस्सा गिरने से खौफनाक हादसा टल गया। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त क्लासरूम्स में तालिबात मौजूद नहीं थीं, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों की इमारतों की खस्ताहाली संगीन मसला बनती जा रही है। हालांकि सालाना करोड़ों रुपए तालीम के नाम पर खर्च किए जाते हैं। अवामी हलकों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और स्कूल इमारतों की मुरम्मत का मुतालिबा किया है। आरिफाल के थाना अहमद यार की हदूद में घरेलू नाचाकी पर खातून पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक शौहर इमरान ने अपने भाई कुर्बान के हमरा बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाल काट दिए। DPO पाकपतन जावेद चद्दर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि हुकाम का बताना है कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी। आरिफवाला में थानेदार का रिश्वत लेने का नया तरीका सामने आ गया। आरिफवाला के थाना कबूला शरीफ में तैनात इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर पर रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। मुतासरा शहरी शमीर अहमद के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने उसके अहले खाना को रात के वक्त हिरासत में लेकर थाने की बजाय रेस्टोरेंट मुंतकिल किया, जहां खाने के बाद 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालिबा किया गया। शहरी के मुताबिक 1 लाख रुपए वसूल करने के बाद भी उसके बेटे को 2 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और मजीद रकम न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुतासरा शख्स ने IG पंजाब और वज़ीर आला से इंसाफ फराहमी का मुतालिबा किया है। पाकपतन में एंटी करप्शन का छापा, बर्थ सर्टिफिकेट के इंदराज के लिए रिश्वत लेने वाला सेक्रेटरी गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में एंटी करप्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनियन काउंसिल 93D के सेक्रेटरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर काशिफ हाशमी के मुताबिक मुल्जिम ने शहरी से बर्थ सर्टिफिकेट के इंदराज के लिए 10,000 रुपये रिश्वत वसूल की थी। हुकाम का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और वहां लियाकतपुर में थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में मुसल्ला उबाश नौजवान को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के मोबाइल फोन से फेक ID भी बरामद हुई है, जिसके जरिए वो मुबैना तौर पर इदारों और मुअज़्ज़िज़ीन के खिलाफ हर्जा सराई करता था। पुलिस ने मुल्जिम को थाने मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि सख्त कार्रवाई का इम्कान है। विहाड़ी पुलिस ने शादी का झांसा देकर शहरियों से रकम बटोरने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। DPO विहाड़ी तस्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना फतेह शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फ्रॉड में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। शिकायत कुनंदा के मुताबिक मुल्जिमान ने रिश्ता तय कराने के बहाने जहेज के नाम पर 2 लाख रुपए वसूल किए और बाद गायब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। उकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक लिफ्टर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। थाना कैंट पुलिस ने SHO खालिद महमूद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए बाइक लिफ्टर गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जा से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत 9 लाख रुपए है। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ किया है। उकाड़ा में पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आइस बरामद कर ली। थाना हवेली लखा पुलिस ने SHO सईद अहमद भट्टी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम शौकत के कब्जा से 1100 ग्राम आइस बरामद की गई। मुल्जिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। रहीम यार खान के इलाका खानपुर में हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अदालती फैसले पर अमल दरामद के बाद सूरत हाल मुतनाज़िब बन गई। पुलिस मुदाखलत ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। ताहम कब्जा हवालगी के बाद मुबैना सियासी दबाव के तहत थाना सिटी खानपुर पुलिस ने मुतहर्रिक हो गई है और सूरत हाल को दोबारा मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की गई है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अमीन गुल के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें से एक मुकदमा खारिज, जबकि दूसरे में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत दी है कि आइंदा पेशी पर लिफ्टर की तस्वीर पेश की जाए। मुतासरा शहरी अमीन गुल ने आला हुकाम से नोटिस लेने और अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है।
टंडो रहीम खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्ल केस में नामजद मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। SHO ने मीडिया को बताया कि चंद माह कबल जमीन के तनासे पर जमाली और शाहानी बरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान अहमद जमाली जख्मी हुआ और बाद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाक़े का मुकदमा वरसा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस का बताना है कि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया, जबकि उसके कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। और नाज़रीन, पाकपतन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुबैना करप्शन और मजदूरों के इस्तेसाल के इल्जामात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मजदूरों से न सिर्फ तनख्वाहों में कटौती की जा रही है, बल्कि सफाई के सामान के अखराजात भी उनसे वसूल किए जा रहे हैं। मुतासिरा मजदूरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फ्राहम करने का मुतालिबा किया है। शहरी हलकों में भी इस मामले पर तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन, ओकाड़ा में एंटी रेप एक्ट 2021 पर वर्कशॉप तफ्तीशी अफसरान को खुसूसी तरबियत दी गई। वर्कशॉप में जिला भर के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की, जबकि DSP लीगल कलीमुल्ला और डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सलमान हैदर ने खसूसी लेक्चर्स दिए। इस मौका पर बताया गया कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं और एंटी रेप मुकदमात तरबियत याफ्ता अफसरान को ही सौंपे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहानिया का रुख करेंगे। सुथरा पंजाब वर्कर्स का एहतजाज, तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्कर्स का कहना है कि उनकी मुकर्ररा तनख्वाह 39,600 रुपये है, मगर उन्हें 29 से 30,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वर्दी, शूज़ और दीगर सहूलियात की मदद में भी कटौतियाँ की जा रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें उनका हक दिया जाए। मुझे टर्मिनेट इसलिए किया गया कि मैं पहले तो इनको देता था सैलरी, हर माह 10,000 कटौती कर रहे थे और इज्जत से दे रहे थे इसको। जब मैंने इसका इनकार किया तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जी। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमें सिर्फ 35,000 या 34,000 मिलते हैं, ना मोबाइल मिलता है, ना मशीनरी की कोई भी ख़राबी हो हम खुद ही अटेंड करते हैं। उसमें 25 से 26,000 हमारी सैलरी बचती है। बाकी यानी कि ख़र्चा, कभी रक्षा खराब, कभी ये टायर पंचर, कभी वो, कुछ भी नहीं देते ये। उधर सियालकोट सिटी सर्कल के मुख्तलिफ थानों में हालिया अरसे के दौरान जराइम की शरह में नुमाया कमी देखने में आई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई गई है, जबकि DSP सिटी सर्कल का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के इक़दामात जारी हैं। तफसीलात बताएंगे मलिक मकसूद। जी, कुछ अरसे से सियालकोट सिटी के जो थाने हैं उनमें क्राइम की शरह जो है वो कम होती देख रहे हैं। तो उसकी वजह जो है वो DSP सर्कल सिटी जो है तारक महमूद डुड्डी साहब, उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। क्राइम में कमी ओवरऑल पंजाब में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है, जिसका गवर्नमेंट की तरजीह है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को उसकी सरकूबी की जाए, उसको ख़त्म किया जाए और हमारे तमाम सीनियर अफसरान उनकी प्रायोरिटी है, वो केस टू केस इसको मॉनिटर करते हैं, इसकी वो कारकर्दगी चेक करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का इसमें नुमाया किरदार है। तो इंतज़ामिया का या इसका सिर्फ सेफ सिटी का तो क्या कमाल होगा। मैंने आपको बात यहाँ से शुरू की कि जो थाने हैं वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितनी वारदात हुई है वो विदाउट एनी डिले पहले 24 आवर्स में या अगले 24 घंटों में तमाम वो मुकदमात यकसू हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, रिकवरियाँ हो रही हैं। लेकिन उसमें हमारी डिटेक्शन में ह्यूमन जो हमारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमें बहुत सारी रहनुमाई और हमारे लिए लीड का बायस होता है। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि यहाँ तक हमारी कारकर्दगी वो तो है, लेकिन सेफ सिटी जो है वो उसका काफ़ी हद तक किरदार जो इसमें क्राइम कमी में आता है वो है। जी,
दूसरी जानिब शेखुपुरा में ज़िले इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मुतादिद इमारतें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर जिला काउंसिल की हदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग भी जारी की गई हैं, जबकि ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िले इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि शहर में कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उधर कोट चट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई बार बार वार्निंग के बावजूद तजावुजात खत्म न करने पर दुकानें सील कर दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक मुतादिद बार वार्निंग देने के बावजूद दुकानदारों ने तजावुजात खत्म नहीं की, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मेन रोड और बाजारों में किसी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। वहाँ फरूखाबाद में ज़िले इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मुतादिद इमारतें सील कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर जिला काउंसिल की हदूद में गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। इस दौरान बगैर नक्शा और गैर मंजूर शुदा कमर्शल इमारतों को सील किया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग भी जारी की गई है। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और शहर में कानून की अमलदारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जलालपुर भटिया में फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, नाकिस दूध पर मिल्क कलेक्शन सेंटर सील कर दिया गया। जलालपुर भटिया में वज़ीर आला पंजाब के मिलावट से पाक खुराक मिशन के तहत फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने कोट मियाँ गाँव में छापा मारकर गैर मयारी दूध फरोख्त करने वाले मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक दूध के सैंपल्स फेल होने पर कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि वर्कर्स की ज़ाती सफाई भी इंतहाई नाकिस पाई गई। सेंटर में सफाई की अबतर हालात और हशरात की मौजूदगी पर उसे इस्लाह तक बंद कर दिया गया। और लियाकतपुर में अकलियती कॉलोनी पर मुबैना ऑपरेशन घर मसमार और दर्जनों अफराद पर मुकदमा दर्ज करके इल्जामात सामने आए हैं। लियाकतपुर की नासिर कॉलोनी में मुबैना ऑपरेशन के खिलाफ मुतासिर अफराद सामने आ गए हैं। रिहायशी के मुताबिक तहसील इंतजामिया ने रात का कार्रवाई करते हुए उनका घर मसमार कर दिया और 15 खवातीन समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बायस मुतासिरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब महकमा रेवेन्यू का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा ज़मीन सरकारी मलकियत थी और गैर कानूनी कब्जा वागुजार कराया गया है, जबकि पहले से तामीर शुदा घराने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फ्राहम करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने शहर में ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत इकबाल मंजिल और मुल्हिका कदीम बाजारों का दौरा किया। तफसीलात बताएंगी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्सा रियाज। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खसूसी हदायत पर सियालकोट में मंजिल इकबाल को खूबसूरत बनाने के लिए काम पूरे जोशो जज्बे से जारी है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। मैडम बताइएगा कि इकबाल मंजिल को खूबसूरत बनाने के लिए जो काम महीनों का है वो दिनों में किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? जी, हमें सीएम साहबा की तरफ से जो डेडलाइन मिली है वो जून तक की है, तो जून तक हमने इंशाल्लाह इसका इन ऑल रिस्पेक्ट्स जो है वो इस जगह को कंप्लीट करना है, जिसमें इसकी आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, ये सारी कवर्ड होगी। यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीट है वो वाइडन हो जाएगी। इसके बाद आके फसाड्स इंप्रूवमेंट होगी, आपकी वायर्स जो हैं वो आप डक्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारा काम इंशाल्लाह हमने जून तक कंप्लीट करना है। मैडम मुझे बताइएगा कि तजावजात इस बाजार में तजावजात में भरमार की थी, बल्कि सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर अहमद भट्टो ने यहाँ के जो तजावजात थे उसको इस तरह उन्हें रगड़ा दिया है जैसे कि भी कपड़े को साफ करता है, क्या इसी तरह तजावजात को भरमार किया जाएगा? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि हम वाइडन कर रहे हैं तो इसके अंदर जो जो चीज़ बीच में आएगी उसको भी हम जो है वो उसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली साहिबा, जिनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि ये इकबाल मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खसूसी हदायत की है और इनका ये कहना था कि तजावजात को हम इसी तरह ही भरमार करते रहेंगे। जी
आगे बढ़े और आपको बताएं, खैरपुर नाथन शाह में बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले फौजी जवान अफजल चांडियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शहीद फौजी जवान अफजल चांडियों को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौका पर फजा सोगवार रही और शहरियों ने शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। जड़ावाला में CPO की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। संगीन जराइम पर सख्त इक़दाम की हिदायत जारी की। मीटिंग में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जराइम पर ब्रीफिंग ली गई और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत की गई। CPO ने व्हीकल चोरी, मंशियात और नाजायज़ असलहा के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। लियाकतपुर में महकमा रेवेन्यू की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लारेब असलम ने शहरियों के मसाइल सुने। उन्होंने मौका पर ही मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि तमाम दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए और 2 दिन के अंदर मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। लारेब असलम ने मजीद कहा है कि रेवेन्यू इस्लाहात के हवाले से अमले के साथ अलग इजलास भी मुनक्किद किया जाए ताकि निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, बहावलपुर में DPO की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी अहकाम जारी किए गए। DPO ने साइलिन को फर्दन सुना और मुतल्लिका अफसरान को मौका पर ही कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। मुतादिद SHOs को तलब करके जवाब तलबी भी की गई है, जबकि रिकवरी के मुकदमात में 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। डेरा गाजी खान में मैट्रिक इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद के लिए कमिश्नर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है। DG खान में मैट्रिक इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर DG खान और चेयरमैन बोर्ड ऑफ एजुकेशन मुतहरिक हैं। उन्होंने गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर इम्तिहानी इंतजामात, सिक्योरिटी और माहौल का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने नकल के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। शहीद बेनज़ीराबाद में ज़िले इंतजामिया ने किफ़ायत शआरी पॉलिसी पर सख्त अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। इजलास में कहा गया है कि मार्केट्स, बाजारों, शादी हॉल्स और दीगर तिजारती मराकज़ के औकातकार हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो ताजर बरादरी के साथ इजलास करके अमल दरामद यकीनी बनाएं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इजलास में ताजर नुमाइंदों ने ताउन की यकीन दहानी कराई और बिजली और गैस की फराहमी बेहतर बनाने की दरख्वास्त भी की गई है। औस्ता मोहम्मद में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें महंगाई और अवामी मुश्किलात पर तफसीली गौर किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए ज़िले अमीर और जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अवामी हकूक़ की तर्जुमानी जारी रखेगी और महंगाई के खात्मे के लिए जदोजहद करेगी। इजलास में तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया, जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। शरकपुर शरीफ में डेंगू से बचाव के इकदाम, CDC ऑफिसर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और टीमों को हिदायत जारी की। शेखपुरा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हाजी गुलाम सरवर ने तहसील शरकपुर शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों और दरियाए रावी के किनारों का दौरा किया और डेंगू टीम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड टीम्स को हिदायत की है कि वो मुतहर्रिक रहें और इंसदादे डेंगू इकदाम को मौसर बनाएं। इस मौका पर शहरियों को भी आगाह किया गया है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ सुथरा रखें ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके। तंगवानी के नवाही गांव में सहूलियात के फुकदान पर देहातियों ने पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी मुदाखलत की। इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर कश्मीर और असिस्टेंट कमिश्नर तंगवानी ने मौका पर पहुंचकर देहातियों से मुलाकात की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद पोलियो टीम्स दोबारा गाँव पहुंची और मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई।
DG खान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें लाखों बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डेरा गाजी खान में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कमिश्नर ने हिदायत जारी की हैं कि मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैरपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र 6,07,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 1878 मोबाइल, 148 फिक्स्ड और 39 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गईं, जबकि निगरानी के लिए 407 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। आपको बताते चलें कि महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम में लेडी हेल्थ वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और वैक्सीनेटर्स भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। कसूर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। हुकाम के मुताबिक मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। कसूर से देखिए जावेद आशिक की ये रिपोर्ट। कसूर में 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने मरियम नवाज हेल्थ सेंटर गंडा सिंह में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि बच्चों के फिंगर मार्किंग भी की गई। महकमा सेहत के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके दौरान जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 7,50,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बाद डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई सुथराई के इंतजामात, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, मरीजों को फराहम की जाने वाली मुफ्त तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और उनके लवाकिन से अद्वियात और सहूलियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया, जबकि इंतजामिया का कहना है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हर बच्चे तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शुडोगर, TV टुडे, कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर पिंड दादन खान में डिप्टी कमिश्नर जहलम का दौरा, तरक्याती कामों और अस्पताल सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, अद्वियात और अमले की हाजिरी का जायजा लिया है और इंतजामिया को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। बादशाह उन्होंने मेन बाजार में जारी ब्यूटिफिकेशन मनसूबे का मुआयना किया, जहाँ सड़कों की कुशादगी और नकासियाब के निज़ाम पर काम जारी है। उकाड़ा में रुकन सूबाई असम्बली बिलाल यासीन का वासा का अचानक दौरा, कारकर्दगी का जायजा लिया। उकाड़ा में रुकन सूबाई असम्बली बिलाल यासीन ने वासा ऑफिस का अचानक दौरा किया, जहां DG मियां तैयब फरीद भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर MNA चौधरी रियाजुल हक और MD वासा अब्दुल वहीद ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वासा की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि शहरियों को फराहमी और नकासियात की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई। सरगोदा में मेगा सीवरेज मंसूबे का मुआयना, कमिश्नर ने फेज 1 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने मंसूबे के फेज 1 को 30 मई तक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मानसून से कबल नकासियाब के निज़ाम को फाल बनाना ज़रूरी है। हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम पर तेज़ी से काम जारी है, ताकि बारिशी पानी को महफूज करके मौसर इस्तेमाल में लाया जा सके। नेपालपुर में सिटी प्रेस क्लब की टीम ने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया है, जहां थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों का जदीद मशीनों के जरिए मुफ्त इलाज जारी है। रिपोर्ट करेंगे काशिफ वट्टू। दीपालपुर में सिटी प्रेस क्लब की टीम ने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया, जहां निजी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सेंटर के डायरेक्टर अली जुगनू ने सहाफ़ियों को मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली दौरा करवाया। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 154 मासूम बच्चों का जदीद मशीनरी के जरिए मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज किया जा रहा है। दीपालपुर में थैलेसीमिया सेंटर का जो क़याम हुआ है, ये जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ, ये बड़ा ऐसा इकदाम है। यहाँ पे जो है वो सैकड़ों बच्चे थे जो इस मूजी और मुहलक वबा में मुब्तला थे। अब उनको उनकी ज़िंदगियों को बचाने के हवाले से ये जो सेंटर है ये बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है। और मेरी आपके इस चैनल के हवाले से वसातत से ये तमाम शहरियों से, ख़ास तौर पर दीपालपुर तहसील के शहरियों से ये अपील है कि इस थैलेसीमिया सेंटर में इस नन्हे और मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें। दीपालपुर में थैलेसीमिया सेंटर जो बना हुआ है, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी और यहाँ पे
جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ میں اپنے دیپالپور کے جو باحثیت لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اپنے آپ مدد کر رہے ہیں اپنی، تو تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بچوں کو بروقت اور محفوظ خون کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جاتی ہے تاکہ ان کی زندگی کو بہتر اور محفوظ بنایا جا سکے۔ سینٹر کی انتظامیہ محدود وسائل کے باوجود انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی خدمات بھرپور انداز میں سر انجام دے رہی ہے، جو یقیناً قابل تحسین ہے۔ دیپالپور کے اندر تھیلیسیمیا سینٹر 150 بچوں کا فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے۔ یہاں پہ جدید مشینیں ہیں، لیبارٹری کی سہولت موجود ہے۔ جو بھی ڈونر یہاں پہ بلڈ دینے آتا ہے ان کے پہلے مکمل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور بچوں کو پھر وہ محفوظ بلڈ ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے۔ یہ تمام جو اخراجات ہیں تھیلیسیمیا سینٹر میں، وہ بچوں پہ 1 روپے کے بھی اخراجات نہیں ہے، وہ خود فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے مخیر حضرات کے تعاون سے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ تشریف لا کے ان ننھے بچوں کے سر پہ دستے شفقت رکھیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں کاشف بٹو، ٹی وی ٹوڈے، دیپالپور۔ فیصل آباد میں مختلف فلاحی اداروں کے اشتراک سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف فاروق نقوی کی اس رپورٹ میں۔ اس کیمپ میں صدر البرکت فاؤنڈیشن رانا محمد عثمان، ڈائریکٹر محمد عمران سہیل، جنرل سیکرٹری مرزا محمد جمیل، فنانس سیکرٹری مس اقرا محمود، جوائنٹ سیکرٹری رانا محمد عامر، ڈاکٹر محمد اکمل، ڈاکٹر مرزا عبدالرشید، محمد ندیم مرزا ابرار کے علاوہ بیگم رضیہ عبدالستار ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محمد فاروق، فنانس سیکرٹری محمد اویس اور ممبر محمد زبیر نے شرکت کی۔ اس کیمپ میں جنرل فزیشین، فزیوتھراپسٹ، کلینیکل سائیکالوجسٹ، گائنی، ماہر غذائیات اور جنرل فزیشین نے 580 مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان کو فری ادویات فراہم کی گئیں اور ان کے فری ہیپاٹائٹس، فری الٹراساؤنڈ، ای سی جی اور فری شوگر ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈویژنل بیورو چیف فاروق نقوی، فیصل آباد۔ سیفن شریف میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کی 19ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی ہے۔ برسی کی مرکزی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور چیف سیکرٹری سندھ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو خطے میں اہم سفارتی مقام حاصل ہے اور توانائی بحران پر حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی پروگرام جاری ہیں اور منشیات کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کی جا رہی ہیں۔ سرگودا کے علاقہ بھاگٹا والا اور گردونواں میں ون وے کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی، جس کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرگودا کے مختلف مقامات حساس پوائنٹس بن گئے ہیں، جہاں ڈرائیورز غلط سمت میں گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے متعلقہ حکام اس صورتحال پر خاموش ہیں۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مقامات پر پولیس نفری تعینات کی جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ کمیر شریف میں غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے، جہاں ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی بند کر دی جاتی ہے اور 1 گھنٹے تک بند رہتی ہے۔ شہریوں کے مطابق یہ سلسلہ دن رات جاری ہے، جس سے گھریلو اور کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شیڈول جاری کر کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ اوکاڑا میں غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ رات کے وقت بجلی کی بندش سے شہریوں کی نیندیں متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ مچھروں کی بہتات نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں اور معمولات زندگی مفلوج ہو چکے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے فوری شیڈول جاری کر کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ لوئر تیر میں فلائی اوور منصوبہ سست روی کا شکار ہے، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوئر تیر کے علاقہ تیمرگرہ میں شہید چوک پر زیر تعمیر فلائی اوور منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ 1 ارب 61 کروڑ روپے مالیت کا یہ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہی سست روی کا شکار ہے۔ یہ فلائی اوور 4 اضلاع کو ملانے کا اہم ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی تکمیل سے ٹریفک کے دیرینہ مسائل کے حل کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کے لیے فوری فنڈز فراہم کیے جائیں اور کام کی رفتار تیز کی جائے۔
दादू में शहरियों और समाजी हलकों ने TMA दफ्तर की खस्ता हाली और सफाई निज़ाम की खराब सूरत हाल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरियों के मुताबिक तालुका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर का अहाता मछली मार्केट का मंजर पेश कर रहा है, जहां मछली फरोशों की रेहड़ियां मौजूद हैं, जिससे इंतजामी नाअहली वाज़े हो रही है। शहरियों ने मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात आयद करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने और मुकम्मल ऑडिट कराने का मुतालिबा किया है। साहुका में अड्डा जमलेरा खारा पुल और गोला अड्डा से गुजरने वाला मेन बुरे वाला रोड टूट फूट का शिकार होकर शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। खस्ता हाल सड़क के बाइस शहरियों को मंडी और अस्पताल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि मुकामी अफराद ने फौरी मुरम्मत का मुतालिबा किया है। तफसीलात जानते हैं आबिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। जमलेरा से बुरेवाला जाने वाली मरकजी शाहराह के बाज़ मकामात शदीद खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अर्ज़ है जी जो बारिश का मौसम होता है लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासकर ताजर बरादरी, और इस तो इलावा अगर कोई मरीज़ है तो वो भी बड़ी उसमें दुश्वारी होती है। अगर जितनी वो मरीज़ की मुश्किलात है इस रोड के मतलब तोड़ फोड़ की वजह के नाल वो पहुँच ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लिहाजा हुकूमत या कि साड़ी दरखास्त है कि जिस तरह इन्होंने अगे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे काम किए हैं, तो ये भी काम जो है जमलेरे अड्डे का ये बर वक्त जल्दी किया जाए तो ताकि अवाम उन्नास को आसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ लोग जो लेकर जाते हैं ट्राले ट्रैक्टर वगैरह जो चीज़ लेकर जाते हैं वो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। कोई मरीज जाता है तो वो भी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, अस्पताल में पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बराए मेहरबानी इस रोड को नज़रसानी की जाए और इसको दोबारा मुरम्मत किया जाए। नया बनमोड़, अड्डा जमलेरा, खादर पुल और अड्डा गोला के इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि बारिश के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। ये अहम सड़क बुरेवाला और जमलेरा समेत पूरे इलाके को चौकमरला, साहुका, बहावल नगर, लुडन, हासिलपुर, पाक पतन और दीगर शहरों से मिलाती है, जहां रोज़ाना बड़ी तादाद में ट्रैफिक गुजरती है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि हादसात का ख़तरा भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं और बारिश के दौरान पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है। स्कूल जाने वाले तुलबा, मुलाजमत पेशा अफराद और मरीज़ सब ही इस सूरत हाल से शदीद मुतासर हैं। शहरियों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि फ़ौरी नोटिस लेते हुए सड़क के मुतासरा हिस्सों की तामीर व मुरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। आबिद हुसैन, नुमाइंदा, TV टुडे, साहुका। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। उधर पिंड दादन खान में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया वाहिद चिल्ड्रन पार्क चंद ही बरसों में खस्ता हाली का शिकार होकर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में लगाए गए झूले, लाइट्स और दीगर सहूलियात टूट फूट का शिकार हैं या गायब हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। मौजूद हूँ जिला जेलम के दूसरे बड़े शहर पिंड दादन खान में। यहाँ पे 2021 में एक बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया था, जो अब 5 साल में ही खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक शहरी, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने बताया है कि साल 2021 में पिंड दादन खान के अंदर एक चिल्ड्रन पार्क के नाम से पार्क बनाया गया, लेकिन 5 साल का कदीम अरसा गुजरने के बाद ये जो पार्क है इसकी हालत ज़ार ये है कि यहाँ पे झूले जो थे लगाए गए थे वो भी बिल्कुल उखेड़ पछाड़ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रीनरी लगाई गई थी वो भी ख़त्म हो गई है, ग्रीन बेल्ट लगाई गई थी वो भी ख़त्म हो गई है, और इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो दरख्त लगाए गए थे वो भी ख़त्म हो गए थे, बेंचेस लगाए गए थे, इवन पानी तक का बंदोबस्त किया गया था बच्चों के लिए। लेकिन अब इसकी हालत ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर बकरियाँ और दीगर जो जानवर हैं उनकी ये आमादगाह बन चुकी है। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस पार्क को दोबारा रेनोवेट किया जाए और चिल्ड्रन पार्क जो है वो दोबारा बनाया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी का कहना था कि यहाँ पे इस पार्क को दोबारा से बनाया जाए। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस पार्क को दोबारा से बनाया जाए ताकि बच्चे यहाँ पे आके तफरी मुकाम है यहाँ पे।
तहसील पिपला में पेट्रोलियम कीमतों में कमी और हुकूमती हिदायत के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। पिपला से रावलपिंडी का किराया जो पहले 1200 रुपये था उसे बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया था। ताहम हुकूमत की जानिब से 25% कमी के ऐलान के बावजूद वही पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मियांवाली आफ्ताब हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली में। बात की जाए किरायों के हवाले से तो सीएम पंजाब ने किरायों में 25% रियायत का ऐलान किया है, जो कि पेट्रोल महंगा होने से पहले रावलपिंडी का किराया 1200 रुपये था, फिर वो पेट्रोल महंगा होने के बाद 1600 रुपये कर दिया गया था पिपला से रावलपिंडी। आज भी वही किराया वसूल किया जा रहा है। इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है सीएम पंजाब के हुक्म के बावजूद भी किराए वही वसूल क्यों किए जा रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब पेट्रोल सस्ता था तो 1200 रुपये किराया पिपला से मियांवाली का था, पिंडी का था, तो आज जो है वो किराया 1600 रुपये है। हालांकि पेट्रोल कम हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो ट्रांसपोर्टरों ने जो था वो किराए में जो है किराए बढ़ा दिए थे, लेकिन अब जब कीमतें कम हुई हैं तो किराए आज भी वही 1600 वसूल किया जा रहा है। तो ये सीएम पंजाब की जानिब से एक ऐलान भी किया गया कि किरायों में 25% कमी की जाएगी, लेकिन वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही है, अभी तक कोई कमी उसमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि आज भी जब किराए का पता किया गया है तो वही किराया 1600 ही वसूल किया जा रहा है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर नोटिस लें और शहरियों को जो है वो रिलीफ दिया जाए, जैसा कि सीएम पंजाब का ऐलान है वो। जी शहरी की बात आपने सुनी कि सीएम पंजाब के ऐलान के बावजूद भी किराए वही वसूल किया जा रहे हैं। चेक एंड बैलेंस किया जाए इंतजामिया की तरफ से ताकि किराए में कमी हो सके और आवाम को रिलीफ मिल। चनियोट में सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौतियों के खिलाफ खत्म नबूवत चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। वर्कर्स का कहना था कि उन्हें एक माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि सरकारी छुट्टियों में भी इजाफी काम लिया जा रहा है, जबकि वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आपको बताएं कि फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से कहा है कि वो फौरी नोटिस लें। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वर्कर्स का कहना था कि उन्हें एक माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी छुट्टियों में भी इजाफी काम लिया जा रहा है, जबकि वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि खत्म नबूवत चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वर्कर्स का कहना था कि उन्हें एक माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं ओकाड़ा में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शहरी और देही इलाकों में सरगर्मियां तेज कर दी गईं। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर सुथरा एजेंसी के तहत सफाई भरपूर अंदाज में जारी है। MD चौधरी अब्दुल जब्बार की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली रजा की निगरानी में शहरी और देही इलाकों में सफाई का अमल तेज कर दिया गया है। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मीरपुर साकरू के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 8वीं जमात के तलबा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वालिदैन, तलबा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को गोल्ड मेडल, शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एजाज अली थे। हुजरा शामुकीम में सुथरा पंजाब टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सफाई मुहिम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स को तारीफी शील्ड से नवाजा गया है। मुकर्रीन का कहना था टीम की दिन रात मेहनत से शहर का माहौल बेहतर हुआ। इस मौका पर हुकाम ने अज़्म जाहिर किया है कि सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। उधर मीरपुर साकरू में इकरा गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मौजूद शख्सियात, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां बच्चियों की तालीम की अहमियत को उजागर किया गया। चेयरमैन ने स्कूल का दौरा करके असातिज़ा से मसाइल और सहूलियात के हवाले से तफसीलात हासिल की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई।
नासरीन, साहिवाल में ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। साहिवाल के सिल्वर जुबली एंड चिल्ड्रन अस्पताल पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ताउन से ब्लड बैंक, थैलेसीमिया और हेमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में डीजी नर्सिंग पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। इस मौका पर सेंटर की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया गया है कि ये सहूलत थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए निहायत मुफीद साबित होगी। तकरीब के इख्तिताम पर रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया गया है और मेहमानों ने सेंटर का दौरा भी किया। सरगोदा में शजरकारी मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने तुलबा के हमरा पौधे लगाकर आगाही वॉक की क़यादत की। न्यू डीसी कॉम्प्लेक्स में 100 जबकि चदर चौक में 1500 पौधे लगाए गए। इस मौका पर तुलबा के हमरा आगाही वॉक भी की गई, जिसमें शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का पैगाम दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निहायत ज़रूरी है। नासरीन, बहावलपुर में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत चोलिस्तान की वसी बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत इजलास में स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 76,950 एकड़ सरकारी अराजी इस मंसूबे के लिए मुख्तस की गई है। इस ज़मीन पर 15,390 ज़रई प्लॉट्स बनाए जाएंगे, जबकि जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे से खित्ते की मौशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी मुतवक्की है। नाज़रीन, सोहबतपुर में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाकर रख दी है। खड़ी और कटी हुई फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मांझीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी और कटी हुई सरसों की फसलें पानी में डूब कर तबाह हो गई हैं। किसानों के मुताबिक पहले ही महंगाई और ज़रई अखराजात के बोझ तले दबे काश्तकारों को इस कुदरती आफत ने शदीद माली नुकसान पहुँचाया है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत से फौरी इमदाद, नुकसानात के सर्वे, मुआवजे और ज़रई सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा किया है। आपको बताएं कि मुआवजे का भी मुतालिबा किया गया है। उनका कहना है कि ज़रई सहूलियात फराहम करें और किसानों को रोज़गार भी फराहम किया जाए। उनका कहना था कि महंगाई और ज़रई अखराजात के बोझ तले दबे काश्तकारों को इस कुदरती आफत ने शदीद माली नुकसान पहुँचाया है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत से फौरी इमदाद, नुकसानात के सर्वे, मुआवजे और ज़रई सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा किया। नाज़रीन, मुरीदके में वसाख के आगाज़ के साथ गंदम की कटाई का अमल जारी है, ताहम महंगे डीजल और हालिया बारिशों ने काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। वसाख के आगाज के साथ ही मुल्क भर की तरह तहसील मुरीदके के नवाही इलाकों में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। खेतों में हार्वेस्टर्स चल रहे हैं और काश्तकार दिन रात मेहनत करके अपनी फसल समेटने में मसरूफ हैं। ताहम डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने मुरीदके के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। किसानों का कहना है कि हार्वेस्टर चलाने, फसल की कटाई और तरसील के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, जिससे इनकी लागत में इजाफा और मुनाफा में कमी का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानब हालिया बारिशों और तेज हवाओं के बाइस मुरीदके और गिरदोनवा में कई जगहों पर गंदम की फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे कटाई का अमल मजीद मुश्किल हो गया है। गिरी हुई फसल की कटाई में वक्त भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी बढ़ जाता है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमतों में कमी की जाए और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी फसल को बर वक्त महफूज बना सकें। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज, मुरीद के। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सरगोदा में क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर क्रिकेट खिलाड़ियों के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 200 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा मंजूर के मुताबिक ट्रायल्स में शफाफियत को यकीनी बनाया गया ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी न हो। मुंतखब खिलाड़ी डिवीजन सतह के मुकाबलों में सरगोदा की नुमाइंदगी करेंगे। फैजगंज में सिंध सुपर क्लब बॉयज टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों की टीम्स ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब में रियाज हुसैन मेमन, शाहिद मुराद चांग और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौका पर बताया गया है कि टूर्नामेंट में करीबन 25 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और मुकाबले 4 रोज़ तक जारी रहेंगे, जिसका मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।